and dynamic leadership of our Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Anumula Revanth Reddy Garu, is ambitiously setting up the Young India Skills University in Hyderabad, which is his brainchild, with an objective of providing job opportunities to the students, to imparting skill development training in accordance to the requirements of the local industries, which are having demand in collaboration with various companies in PPP model, and total of 17 priority sectors have been identified and will provide training to 2,000 people in the first year of 2025-26. And we will train the people every year, 20,000 people every year, and the state allocated rupees 100 crores on its part and want to create a corpus fund of about 300 to 500 crores. Now, my question to the ministry is, if there is any proposal from the central government to adequately fund this Young Skills University to make it grand success and to realize the goal of developed nation by 2047. Thank you very much. Thank you, sir. Number of states have established skill universities as per state laws, acts, and our approach is under National Education Policy 2020 to work on convergence, to build on capacity, create an ecosystem for skilling starting from schools and later on going into the higher education system. UGC has also published guidelines with regards to embedded apprenticeship undergraduate degree. So while the state of Telangana that the member is referring to is taking strides and an initiative to launch a skill university, there is no central scheme as such per se for establishment of the skill university, but under our various schemes, we can provide support to credible institutions. Shri Mallu Ravi. Thank you very much, sir, for giving me opportunity. Telangana, there are number of ITI institutions and polytechnic colleges. I request the Honorable Minister, is there any scheme which is going to establish skill development centers in the ITI and the polytechnic colleges in Telangana? We are preparing a DPR to submit to the central government. Otherwise, as of now, any sanctions are made for skill development in Telangana? Sir, ITI is part of our vibrant skilling ecosystem. That's a national footprint, and Honorable Member is talking about ITIs in the state of Telangana. I would like to make this House aware that in the last year's budget also there was a very important announcement that the central government is going to dedicate resources towards upgradation, providing infrastructure support, revitalizing, bringing in new course and curriculum, teacher training programs in ITIs. Total of 60,000 crores is to be spent under this scheme, and I think Telangana state, a number of ITIs could be covered under the scheme. Thank you. Question number 82. श्री आनंद भदौरिया जी। जी अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 82। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, इस सरकार के दौरान गोल्ड लोन एनपीए में ऐतिहासिक वृद्धि देश में आर्थिक संकट की ओर इंगित करती है। रुपए का डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक पतन, और अभी जो भारत सरकार ने 196 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत किया है, वार्षिक बजट, लुढ़कती आर्थिक विकास दर, जो बजट प्रस्तुत किया 196 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो भारत सरकार पर लगभग 196 करोड़ है, वो इस साल के बजट, वार्षिक बजट का 4 गुना है। लुढ़कती आर्थिक विकास दर में बजट भाषण मत दो माननीय भदौरिया जी। जी सर, मैं उसी पे आ रहा हूं कि 12 लाख से ज्यादा रिक्त पद पड़े हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि एक अच्छी खासी अर्थव्यवस्था जो एक दशक पहले विकसित देशों के मुकाबले में खड़ी थी, आज देश के, भारत के लोगों को सोना और मंगलसूत्र गिरवी रख करके लोन लेना पड़ रहा है और उसका रीपेमेंट भारत के लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये अर्थव्यवस्था पर सरकार श्वेत पत्र कोई जारी करेगी? माननीय मंत्री जी।
अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो चिंतित हैं कि गोल्ड लोन पे एनपीए बढ़ रहा है, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 30 जून 2024 के अनुसार जो बैंकों का लोन था, एनपीए था, उस एनपीए में कुल वाणिज्य बैंकों का 0.22% है, और अगर कहें कि उच्च मध्य बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अनुपात जो है वो मात्र 2.58 रहा है। और जहां तक माननीय सदस्य ने अर्थव्यवस्था की बात किया है, 2014 के बाद से जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, 2014 में जहां हम 10वें स्थान पे थे, आज बढ़कर के हम 5वें स्थान पर पहुंच गए। माननीय सदस्य। अध्यक्ष जी, सोना और मंगलसूत्र तो भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, कोई ऐसे ही नहीं अपना सोना गिरवी रख करके लोन लेता है। एक और सरकार कह रही है कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और दूसरी 3 फरवरी के प्रश्न संख्या 172 हमारा ही था, उसमें माननीय मंत्री जी ने 2020 में वैश्विक महामारी के विपरीत वित्तीय प्रभाव का वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद राजकोषीय प्रभाव पड़ा है, इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है। सरकार ने ये जवाब दिया है। तो मैं अध्यक्ष जी जानना चाहता हूं, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार तो अर्थव्यवस्था का बखान कर नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था अच्छी है या खराब है, और अगर अच्छी है आपका कौन सा कथन सही माना जाए? अगर अच्छी है तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का डीए और डीआर देने का कार्य सरकार करेगी? अध्यक्ष जी, जहां तक उन्होंने महिलाओं की बात किया है, एक व्यवस्था दी गई है कि वो चाहे तो अपना ज्वेलरी भी रख करके लोन लेकर के अपना काम चला सकती है। बाकी जो दूसरा इनका पार्ट है वो उन पर से संबंधित नहीं है। श्रीमती कनिमोजी। Thank you, sir. श्रीमती कनिमोजी करुणानिधि, पूरा नाम जी। Thank you, sir. Sir, there was a rapid increase in gold auctioning by non-banking gold loan lenders since the second quarter of 24-25 owing to the new RBI guidelines. And in addition to that, last year the RBI has asked banks and the NBFCs firms not to disperse cash component in excess to rupees 20,000 on gold loans. I'd like to ask the government whether it is taking measures to prevent this large-scale auctioning of gold, because a lot of people who don't have enough time to pay back their loans are suffering because of that, and small-scale borrowers find it very difficult to pay back these loans. And suddenly, when these non-banking loan providers suddenly auction the gold. And I'll also like to know, why are you restricting the cash disbursal at only 20,000 rupees for gold loans? We still have a large section, around 36% of people do not have bank accounts. So if you're going to restrict it at 20,000 rupees, how will we include these people also, and how will they be able to get and use these gold loans? Thank you. अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त किया है, अभी ये देखें तो फरवरी 2024 में सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एक समग्र मूल्यांकन निर्देश जारी किया है, और सितंबर 2024 में आरबीआई द्वारा भी सभी संस्थाओं को गोल्ड लोन पोर्टफोलियो पर कड़ी नजर रखने हेतु दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये अपने बैंक का विषय होता है। बैंक में अगर लोग लोन जमा नहीं कर पाते हैं तो उसकी तमाम प्रक्रिया है कि पहले उनको खरीदकर्ताओं को डिफॉल्ट होने की दिशा में नोटिस बार बार दिया जाता है, पर्याप्त समय देकर के जमा किया जाता है, उसके बाद फिर नीलामी की प्रक्रिया शुरू होती है। श्री मनीष तिवारी जी। Mr. Speaker, sir. Question has not been answered, sir. So, question was about non-bank. Mr. Speaker, sir, with your permission, may I... Non-bank, ma'am. Sir, NBFC, sir. There is no answer for the question, sir. If you permit me, sir.
non-banking financial companies and scheduled commercial banks, all of them are guided by similar rules. And as the Minister of State explained, there is a process of giving enough number of notices to the bank account holder to say your servicing is not up to the mark, and that in the eventuality of you not coming back to pay, we will be forced to go on an auction. Now, even for going on an auction, there are very well laid out procedure. It cannot be done outside of the district. It cannot be done without the presence of the person. It cannot be done unless the valuation is done. It is also not done at a random rate. There is a benchmark rate the NBFC has to fix, and that will not be lower than 80%, I think, over the last 3 or 4 months of gold rate. And that gold rate is not determined by the NBFC, it is determined by the Bombay Bullion Association, I think, who gives out the rate every day, and therefore it cannot be lower than that rate. So these are well laid, tight processes. I would rather have more information from the Honourable MP if these processes are violated. And if they are violated, indeed, it's for us to act on. But the processes are very much in detailed fashion written down and followed by the banks. And the reserve price is something which they have to declare well in time. So I think if there are specific instances where the Honourable MP thinks these laid out norms are violated, I'm quite willing to take the details and act on it. Shri Manish Tiwari. Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, with your permission, may I ask a slightly different question pertaining to gold? In the year 1971, Richard Nixon, who was then President of the United States of America, gave up the gold standard. After that, gold was hardly considered to be a serious financial asset. In 2006, gold constituted only 6% of the reserves of the central banks of the world. In the year 2024, it is up to 11%. China, India, Poland, Turkey are the most aggressive buyers. Even in India, there has been a surge in the domestic price of gold. My question to the Honourable Minister is that this shift away from the dollar to gold, does it indicate a renewed search for an alternative international settlement mechanism, de-horse the dollar? That's my question to the Minister. So the Honourable Member, has he himself mentioned that it is not the core part of the question, but he's still asking, and I would certainly like to give my brief answer on it. India's, as he observed rightly, the demand for gold in India has not come down. On the contrary, it's going up. And I would think it is very typical of India, particularly for households or small businesses, and it is normally said women, but general households also and women also, to invest in gold because they think it's far more secure and far more liquid, and therefore as an asset class, we see that sustained interest in it by the households and small businesses as much as women of India. But beyond that, of course, the Reserve Bank also is buying gold to make sure that it has adequate reserves of gold and not just a basket of currencies. And in that, one of the currency which predominantly has been held by the Reserve Bank has been the US dollar. But we also have the reserve currencies in denominations of different denominations of other currencies as well. But the gold is also kept in the Reserve Bank, and gold is also being bought by Reserve Bank. But beyond that, as regards an international currency or potential currency, there is not much for me to comment at this stage. Question number 83, Dr. Prashant Yadav Rao Pandole. बड़ी आपकी किस्मत है, बहुत बोलते हो संसद में। माननीय सदस्य, लोगों का आशीर्वाद। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा के पटल पे प्रस्तुत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपका आशीर्वाद है। आपके माध्यम से मैं
मंत्री जी यह बताने की कृपा करें, स्किल इंडिया डिजिटल पहल का ब्यौरा और इसके उद्देश्य क्या है? क्या उक्त पहल से देश में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचों को अपनाए जाने को बढ़ावा मिलने की संभावना है और इससे उद्योग में किस प्रकार की सहायता मिलने की संभावना है? इससे नागरिकों को होने वाले संभावित फायदों का ब्यौरा क्या है? सभापति जी, ये स्किल इंडिया डिजिटल हब, ये 13 सितंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई थी और आप अनुमान लगाइए कि बहुत अल्प समय में ही अब इस पोर्टल पे 1,30,00,000 लोग पंजीकृत हो गए हैं। जो कौशल विकास की हमारी 3 योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, तीनों के तीनों पूरी तरह से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के सहयोग से अब स्किल इंडिया डिजिटल हब एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उसको एक दर्जा दिया गया है और इंडिया स्टैक में शामिल किया गया है। इसका अर्थ ये निकलता है कि पूरा जो इकोसिस्टम है, जो हमारी सारी स्कीम्स हैं, वो सब पूरी तरह से विजिबल इस वेबसाइट पे है। ये वेबसाइट ई-केवाईसी इनेबल्ड है और अनेक जो सरकार के पोर्टल्स हैं उनके साथ कनेक्टिविटी पे भी हम तेजी से काम कर रहे हैं, जैसे कि पीएम गति शक्ति, अपार से इसका लिंकेज है, श्रम जिसमें 30 करोड़ जो पंजीकृत हो चुके हैं वो डेटा भी अब स्किल इंडिया डिजिटल हब के साथ शेयरिंग हो रहा है। तो बहुत बड़ा व्यापक इसका दायरा है। मैं सभी माननीय सदस्यों को भी, सांसदों को भी इनवाइट करता हूं कि इस वेबसाइट के माध्यम से वो आप ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जीआईएस इनेबल्ड है। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी संस्थाओं में लाइव कहाँ क्या कौशल विकास का कार्यक्रम चल रहा है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। आप सब सहयोग करें, इसको ट्रैक करें। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर, क्या सरकार इस पहल के तहत लाभार्थियों को वित्तीय सहायता जैसे स्टाइपेंड प्रदान कर रही है? यदि हाँ, तो अब तक कितने लाभार्थियों को यह सहायता मिली है? एवं सरकार इस बात की गारंटी दे सकती है कि इस पहल के तहत प्रशिक्षित युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां मिलेंगी, न कि केवल सर्टिफिकेट मिलेंगे? माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने कहा ना कि केवल सर्टिफिकेट मिलेंगे। मैं अपनी आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा। हमें वैल्यू करना पड़ेगा कौशल विकास के कार्यक्रमों को। सभी जो लाभार्थी हैं, जो युवा है, जो युवा शक्ति देश की है, उन्हें प्रेरित करना पड़ेगा कि वो अपने आप में निवेश करें, अपने आप में विश्वास करें और अपने आप को विकसित करें। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है उसमें हम स्टाइपेंड इंडस्ट्री को सपोर्ट के थ्रू देते हैं। 1500 रुपए हर महीने दिया जाता है, डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है और वो पूरी तरह से स्किल इंडिया डिजिटल हब पे विजिबल है, उसी के थ्रू पेमेंट हो रहा है। थैंक यू। श्री डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद। Thank you, Speaker Sir. Nowadays, so many skill development centers have come. And of course, it is indeed a boon for all the youngsters to develop their skill and contribute to the development of the nation. But some skill development centers have an access or an excess with some corporates. The CSR of the corporates are being utilized for skill development centers. At this point of time, I would like to know whether the corporates have the provision of allocating CSR in developing the skill development centers. Because the way of thinking, this CSR has to be utilized for development of community, but by giving a skill development, of course the community is developed. Eventually the company is also getting developed. Is there a provision by the union government whether the CSR can be utilized for skill development centers? Thank you, sir. Sir, absolutely. Corporate India is providing job opportunities for our youth, and they are considered partners in the entire skilling schemes. Honorable member spoke about community impact. We actually have a dedicated scheme, Jan Shikshan Sansthan, which works through grassroots organizations for community impact. As far as Corporate India giving CSR funds, it is of course welcomed. NSDC is also CSR compliant, and even in the newly announced ITI upgrade scheme, there is a proposal to involve corporate industries, local industrial clusters, MSMEs, so that they can coordinate with the skilling institution, especially ITIs,
and they are also required to contribute CSR up to 10,000 crores in that particular scheme. Thank you. Question number 84, Dr. Srikant Eknath Shinde. क्वेश्चन नंबर 84 सर। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। सर धन्यवाद, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि टूरिज्म मिनिस्ट्री ने महाराष्ट्र को स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से कोस्टल सर्किट और स्पिरिचुअल सर्किट के लिए सहायता दी है। मैं महाराष्ट्र और पूरे देश के गौरव छत्रपति शिवाजी महाराज जी के से संबंधित किलों के डेवलपमेंट के संदर्भ में प्रश्न पूछना चाहूंगा। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े ऐतिहासिक किले जैसे रायगढ़ हो, राजगढ़ हो, सिंहगढ़ हो, शिवनेरी आदि अलग अलग किले हैं। ये किले न केवल इतिहास के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में इसका बहुत पोटेंशियल है। मेरा सरकार से प्रश्न है कि जिस प्रकार टूरिज्म सर्किट्स का विकास स्वदेश दर्शन योजना के माध्यम से किया जा रहा है, तो क्या उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े इन सभी स्थलों को जोड़कर एक छत्रपति शिवाजी महाराज टूरिज्म सर्किट बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधा विकसित की जाए, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिले और छत्रपति शिवाजी महाराज का गौरवशाली इतिहास भविष्य की पीढ़ियों को भी पता चले। धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो निश्चित रूप से भारत की विरासत और भारत के इतिहास से के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार विरासत का संरक्षण करते हुए भारत को विकसित करने की दृष्टिकोण से काम कर रही है, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में पुणे स्थित शिव षष्ठी हिस्टोरिकल थीम पार्क को विकसित करने और छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े हुए सारे आयामों को एक साथ एक स्थान पर प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण से एक विस्तृत योजना राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई थी और राज्य सरकार ने उसके ऊपर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी द्वारा प्रदान की गई थी। भारत सरकार ने भी उसमें सहयोग के रूप में 76 करोड़ रुपए लोहगढ़ के पुनरुद्धार के लिए, अट्रैक्शन बिल्डिंग के लिए और तटबंदी के लिए और उसके साथ में वहाँ जो है टूरिस्ट एमिनिटीज के डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन किया है, जिसका काम शीघ्र प्रारंभ हो रहा है। इसके अतिरिक्त भी स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स इस स्कीम के तहत भी छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़े अत्यंत महत्वपूर्ण किले सिंधुदुर्ग पर अंडर वाटर म्यूजियम बनाने के लिए शासकीय स्कीम में अभी 46 करोड़ रुपए सैंक्शन किया गया है, ताकि एक नया एक्सपीरियंस ऑफ अंडर वाटर सबमरीन टूरिज्म वहां पे दिया जा सके। और क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना और नौसैनिक क्षमता भारत के लिए एक अत्यंत गर्व का विषय है, मैं सदन के संज्ञान के लिए, देशवासियों के संज्ञान के लिए भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से, उनके हस्तक्षेप से भारत के नौसेना के ध्वज को भी छत्रपति शिवाजी महाराज के ध्वज के रूप में नामित किया गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की का जो सोच है कि हम अपनी विरासत का सम्मान करें और गुलामी के प्रत्येक चिन्ह को अपने मानस पटल पर से हटाएं, उसकी दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। माननीय सदस्य ने किलों से को एक साथ जोड़कर के एक सर्किट बनाने की ऐसी कल्पना की है। मैं उसका कल्पना का अभिनंदन करते हुए इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंस्क्रिप्शन होता है, उसके लिए भारत सरकार ने इस बार इन सारे दुर्गों को, जो महाराष्ट्र में भी है, कोंकण में भी है और तमिलनाडु में, इन सारे दुर्गों को एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से साथ जोड़ करके उनको नामित करने के लिए प्रस्तावित किया है। और मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से उसके चलते हुए वहाँ टूरिज्म की संभावनाओं का में वृद्धि होगी। और जब टूरिज्म की संभावनाओं में वृद्धि होगी, राज्य सरकार से जो प्रस्ताव आएंगे उन प्रस्ताव पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जो संसाधनों की सीमितता के साथ विचार करते हुए उस पर काम करते। माननीय सदस्य सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, आपने बहुत ही विस्तृत रूप में उत्तर दिया। धन्यवाद। महाराष्ट्र के लिए स्वदेश दर्शन योजना के लिए प्रोजेक्ट सैंक्शंस हुए थे,
जिनका अप्रूवल अभी मंत्रालय से बाकी है। आपने कहा अंबेगांव में मंजूर हो चुका है, सिंधुदुर्ग में मंजूर हो चुका है, और एक 2-3 काम जो पेंडिंग मंत्रालय के समक्ष है वो मैं सामने लाना चाहूंगा। सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के लिए 122 करोड़, छत्रपति संभाजीनगर में अजंता एलोरा में डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर टू ग्लोबल स्केल के लिए 132 करोड़ पेंडिंग है, और कंजर्वेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ हेरिटेज कॉरिडोर इन छत्रपति संभाजीनगर के लिए 132 करोड़ का मास्टर प्लान और डीपीआर सबमिट हो चुका है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कोयना नगर गार्डन डेवलपमेंट और कोयना बैकवाटर्स, जो मेरा मूल गांव है, वहां पर भी उसके लिए भी सरकार से अर्जी की है। तो ये एक प्रपोजल सरकार कब तक मंजूर करेगी? माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने महाराष्ट्र में टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए जितने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए उनके सब के बारे में चर्चा की। मैं माननीय सदस्य के इस भावना का भी सम्मान करना चाहता हूं कि वो शीघ्रता के साथ में तो वो बंगाल सरकार नहीं भेज रही है प्रपोजल, उसमें मेरा तकलीफ नहीं, वो आपकी चिंता का विषय है। बंगाल सरकार प्रपोजल नहीं भेजती है, वो आपको मैं आग्रह करूंगा कि आप जाकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करें कि वो भेजें। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रपोजल भेजे हैं उन प्रपोजल्स पे इन सारे जितने भी प्रपोजल्स जिनके बारे में स्कीम्स की जिनके बारे में चर्चा माननीय सदस्य ने की है, उन सब पर डिफरेंट लेवल पर जो है अलग अलग प्रोजेक्ट में अलग अलग लेवल पर उस पर विमर्श हो रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि शीघ्र ही ये प्रोजेक्ट्स जो हैं आने वाले समय में दे आर गोइंग टू सी द लाइट ऑफ द डे, बहुत जल्दी उन पर काम प्रारंभ होगा। श्री राजेश वर्मा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हमारी एनडीए की सरकार जिस तरीके से देश की विरासत और धरोहर को लगातार जीवंत करने का कार्य कर रही है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान मेरी खगड़िया लोकसभा के परबत्ता प्रखंड स्थित 52 कोठरी तिरपन द्वार, जो हवा महल के नाम से भी जाना जाता है और 17वीं शताब्दी में सोलंकी वंश के द्वारा स्थापित किया गया था, और साथ ही साथ मानसी प्रखंड के कशरिया धार के बारे में और सिमरी बख्तियारपुर के बाबा बटेश्वर धाम, जो कि हमारे लोकसभा की और हमारे देश की ये विरासत और धरोहर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि स्वदेश दर्शन योजना के क्लॉज 4 के तहत क्या खगड़िया लोकसभा में इन धरोहर और विरासत को जीवंत करने के लिए सरकार की कोई योजना है? मुझे माननीय मंत्री जी से बस यही सवाल एक पूछना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हालांकि प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए इतना माननीय सदस्य को निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि टूरिज्म, जैसा मैंने पिछली बार भी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार का विषय है। राज्य सरकार इसमें अपनी पर्यटन की संभावनाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप जो प्रस्ताव बना करके भेजती है, उन प्रस्तावों पर हम विचार करते हुए आने जो है अपने तय स्कीम्स के अंदर राज्यों का सहयोग फाइनेंशियली और अगर आवश्यक हो तो हम तकनीकी के रूप से उनके साथ में करते हैं। राज्य सरकार अगर इस तरह का प्रस्ताव वहां के पोटेंशियल को, वहां की क्षमता को देखते हुए करे तो निश्चित रूप से उस पर विचार किया जा सकता है। सुश्री आर सुधा। Sir, the entire Kaveri Delta district in Tamil Nadu, especially Mayiladuthurai and Tanjavur districts deserve to be SDS, and the union government must start to make them globally visible tourism destination, as any location in Tamil Nadu, particularly in central Kaveri Delta district, include SDS. If not, why? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा कि ये प्राथमिक रूप से टू प्लान एंड टू एग्जीक्यूट दोनों ये राज्य सरकार का विषय है, ये प्राथमिकता राज्य सरकार को तय करनी होती है। लेकिन निश्चित रूप से हमने तमिलनाडु के कोस्टल सर्किट के लिए ममलापुरम, रामेश्वरम, मंपाडू, कन्याकुमारी, इसके लिए स्वदेश दर्शन में 71 करोड़ रुपए का जो है पहले सैंक्शन स्वदेश दर्शन में किया था।
डेवलपमेंट ऑफ इको टूरिज्म सर्किट इन महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट, अगेन 91 करोड़ रुपए का इको सर्किट हमने सैंक्शन किया था। और ये प्रोजेक्ट जो है ये निश्चित रूप से आगे राज्य सरकार अगर इसमें और भी प्रस्तावित करेगी तो निश्चित रूप से, जैसा मैंने पूर्व प्रश्न के उत्तर में कहा, उस पर विचार किया जा सकता है। श्री ब्रजेश चोटा। Thank you, Speaker, sir. Thank you, Speaker, sir, for giving me an opportunity. Sir, the Mangalore region, the coastal Karnataka, is known for its rich culture, and it's a home for many historic temples, sir, like the Kukke Subramanya, the Puttur Mahalingeshwara temple, and other things. We have sent proposals of Puttur Mahalingeshwara temple, Todikana temple, and Sahasralingeshwara temple, sir. So, in this context, I would like to ask the Honorable Minister. One is regarding these three proposals. And I would also like to ask, are there any guidelines or frameworks in place to ensure equitable selection across states and development of lesser known heritage sites? Also, is there an online digital resource which can be integrated to this scheme, which can showcase select temples and sites through multimedia content also? Because what is happening is there are a lot of sites which cannot be seen because of lack of information, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं और इस बात से निश्चित रूप से उनकी इस बात का समर्थन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा कि आज दुनिया में मार्केटिंग का मीडिया बदल गया और लोग जो है दुनिया डिजिटल मार्केटिंग को पहले प्राथमिकता देने लगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने अभी इनक्रेडिबल इंडिया की वेबसाइट को कंप्लीटली रिवैम्प किया है और उसके साथ साथ में सब राज्यों से आग्रह किया है कि उस पर जितना डिजिटल कंटेंट वो उपयोगी समझते हैं उस डिजिटल कंटेंट को उपलब्ध कराएं। दैट मे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। उसको हम अपनी एक रिपोजिटरी बना करके उसको इनक्रेडिबल इंडिया प्लेटफॉर्म के साथ में समाहित करने के लिए काम कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने कुछ जो है प्रसाद स्कीम पे के में इंक्लूड करने के लिए कुछ भेजे गए प्रस्तावों की चर्चा की है। क्योंकि मूल प्रश्न से उत्तर संबद्ध नहीं है उन प्रस्तावों में कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य जब कभी भी मुझे अवसर देंगे, मेरे पास में समय लेकर के तय करके जब कभी भी मुझे अवसर देंगे, निश्चित रूप से मुझे उनको इस विषय को उनके विस्तार से उनके सामने रखने में बहुत प्रसन्नता होगी। क्वेश्चन नंबर 85 श्री मुकेश कुमार चंद्रकांता। जी सर, धन्यवाद सर for giving me an opportunity. Question number 85. सर, उत्तर सदन की पटल पे रखा गया। ये लेके नहीं रहते प्रश्न। जी सर, ये नीचे रखो। Thank you sir. The government of India under the leadership of Narendra Bhai Modi has done extremely well in the field of education, particularly higher education during the past decade. My question to the Honorable Minister is that, will the Minister of Education be pleased to state the details of budget allocation for the Credit Guarantee Fund for Education Loan, the data on total number of students benefited from this fund in the last 5 years, along with their geographical and demographical distribution, particularly in Gujarat, the details of results observed on access to higher education and loan repayment rates supported by relevant data, and lastly the details of mechanism put in place to monitor and evaluate the effectiveness of the Credit Guarantee Fund for Education Loan and the key performance indicator tracked. अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कई प्रकार की प्रोत्साहन की योजना चलाती है। उसमें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम भी एक है। उसमें अभी तक पिछले साल 31 दिसंबर 2024 तक 3019 करोड़ रुपया की आवंटन किया गया है। माननीय सदस्य ने
पिछले बीते 5 साल की छात्र लाभार्थियों की नंबर पूछा था, वो है 6,78,000 प्रदेशवारी उसकी संलग्न सूची दिया गया है। विशेष करके उन्होंने गुजरात के बारे में पूछा है। गुजरात में 15,501 विद्यार्थी उसकी लाभार्थी बने हैं। Supplementary question, sir. According to a 2022 report by the Union Education Ministry, only 4% of higher education students in India currently benefit from the education loans. The Credit Guarantee Fund scheme for education loans provides much needed financial assistance, but the maximum loan eligibility remains capped to 7.5 lakhs, which is insufficient considering the rising cost of education both in India and abroad. For studies abroad, students are required to pay 50% margin money for loans above 4 lakh and up to rupees 75 lakh, further increasing their financial burden. Given that the tuition fees and living expenses have significantly increased, will the government consider revising the education loan cap and reducing the margin money requirement, ensuring that students, especially from middle class and economically weaker backgrounds, can pursue higher education without financial constraints? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने उल्लेख किया था, भारत सरकार प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में कई प्रकार की योजना चलाती है। उसमें क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम एक है। उसके अलावा सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी ये भी एक योजना है। मीन कम मेरिट स्कॉलरशिप भी एक योजना है और जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के लिए भी एक अलग से स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम भी लागू होती है। जो हायर अमाउंट की लोन के बारे में आदरणीय सदस्य ने पूछा, अभी मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय वित्त मंत्री जी को। पिछले ही बजट में उन्होंने उसी प्रकार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना जैसे एक नई महत्वपूर्ण कार्यक्रम को उन्होंने शुरू किया है, जिसमें कोई प्रकार की कोलैटरल गारंटी की आवश्यकता नहीं है। ये एक नया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जिसमें गाइडलाइन भी अभी भारत सरकार ने सामने रखा है। कोलैटरल फ्री रहेगा, गारंटी फॉर फ्री एजुकेशन लोन रहेगा। ये इसमें 8 लाख तक जिनकी फैमिली इनकम है उनको भी पहले कई प्रकार के लोन में थोड़ा सीमित था, 4.5 लाख की सीमा में दिया जाता था। इसमें 8 लाख तक फैमिली जिनकी इनकम है उनको दिया जाता है। इनकी 10 लाख तक, अभी तक 7.5 लाख का है, 10 लाख तक लोन में 3% इंटरेस्ट सबवेंशन की भी गारंटी कही गई है। इसमें इस बार बजट आउटले में आने वाले 24-25 से लेकर 30-31 तक भारत सरकार की वित्त विभाग ने 3600 करोड़ रुपया की एक स्पेशल फंड भी बनाई है। धीरे धीरे भारत सरकार की प्रचेष्टा रही है उच्चतर शिक्षा में गुणात्मक शिक्षा हमारे देश में ही मिले, और उसमें से इसकी अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इस नई योजना को भी लागू किया गया है। श्री अरविंद सावंत। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रधानमंत्री उच्च स्तर शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, ये देश के छात्रों को, लाभार्थियों को मिल सकती है। क्या देश के जो बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, जैसे कि रशिया में है या यूक्रेन में थे, इनकी हालत आप जानते हो, उनके परिवार में ऐसी स्थिति आती है कि ये जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके बच्चे गए हैं और आज आमदनी रुक गई, अब फी नहीं भर सकेंगे। अब फी नहीं भरेंगे तो बच्चे वापस आने पड़ेंगे, बच्चे को लाना पड़ेगा। क्या करेंगे, कहां से भरेंगे? तो क्या प्रदेश में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी प्रधानमंत्री उच्च स्तर शिक्षा या विद्या लक्ष्मी योजना से लाभ मिल सकता है? क्योंकि कोलेटरल की जब बात आती है, क्योंकि मैंने हाल ही में मेरे पास एक बच्चा, उसके पेरेंट्स आए थे, तो वो लड़की पढ़ रही है रशिया में और उनका जो दुकान था बंद हुआ है। अब पैसे भरने के लिए उनके पास कुछ उपलब्धि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बैंकों से पूछा तो कोलेटरल पूछते हैं कहां से दे देंगे। तो किस तरह से इन बच्चों के लिए आप सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं या उनको आप आर्थिक सहाय कर सकते हैं? धन्यवाद सभापति महोदय।
अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने बताया भारत सरकार की ये योजना भारत में जो NIRF रैंक इंस्टीट्यूशन है उन्हीं के बारे में, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, निजी संस्थान हो या भारत सरकार के संस्थान हो जिनकी NIRF रैंकिंग अच्छी है, उसी में से गरीब विद्यार्थियों को लोन लेके पढ़ने के लिए विद्या लक्ष्मी योजना तथा अन्य 4 प्रकार की प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना किया है। ये मूलतः भारत की इंस्टीट्यूशंस के लिए ही किया गया है। श्री राजीव राय। थैंक यू सर। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस बड़ा स्पष्ट आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, 7 लाख तक का हो जाएगा, लेकिन मैं उस कमेटी में भी हूँ अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से और मैंने कई सवाल किया और मैं सवाल कम सुझाव ज्यादा अनुभव के आधार पर 2008-9 से काम कर रहा हूँ। तमाम ऐसे लिखित शिकायतें बैंकों के नाम और ब्रांच के साथ आई जिसमें मैंने भी जमा किया है कि या तो कोलेटरल सिक्योरिटी 4 लाख तक का भी मांगते हैं और 2 सिक्योरिटी सेम बैंक में जिसका अकाउंट हो उससे मांगते हैं। मैंने अधिकारियों से भी कहा था कि अगर आप जो कागज में लिखा है, नियमों में लिखा है, आप उसको मानते हैं तो एक इंस्ट्रक्शन दे दीजिए सारे बैंकों को कि कोई कोलेटरल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी सेम बैंक में नहीं मांगेगा और बड़े बड़े नोटिस बोर्ड लगा दीजिए ब्रांचों में कि गांव से लोग आए हुए हों और कितने रिजेक्ट हो रहे हैं लोन एप्लीकेशन, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, क्या ये सुझाव कि सारे ब्रांचों में बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा दिया जाए कि कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं, कोई 2 सिक्योरिटी सेम बैंक में अकाउंट होल्डर का नहीं? तो बैंक वित्त मंत्री जी करेंगे तो ये थोड़ी लिखा नहीं, एजुकेशनल लोन से ही जाएगा सर, स्कीम तो शिक्षा विभाग की है। अध्यक्ष जी, आपने सही कहा, लेकिन वित्त मंत्री जी उस मामले में बहुत उदार है। मैं आदरणीय सदस्य को इसकी एक तथ्य सामने रखना चाहूंगा। ये जो एक क्रेडिट गारंटी स्कीम में अभी तक 5 साल में 11,26,000 करोड़ रुपया की लोन विद्यार्थियों ने 11.26 लाख क्रेडिट लोगों ने लिया है, 11 लाख रुपया क्रेडिट लिया है और उसमें 11,26,000 क्रेडिट गारंटी लाभार्थी हुए हैं। उसमें इसकी एनपीए की परफॉर्मेंस, सर कोलैटरल गारंटी पुराने स्कीम पे है, वो थोड़ा वाइड है, इसलिए थोड़ा उसकी गुणात्मक बढ़ा के अभी जो प्रधान विद्या लक्ष्मी योजना पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने लाई है, इसमें कोलैटरल फ्री गारंटी ही नया स्कीम आई है। शायद इस प्रकार के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार धीरे धीरे और उदार होने लगा है। क्वेश्चन नंबर 86 श्री रॉबर्ट ब्रूस सी। माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रखे। ऑनरेबल मेंबर। Sir, I received a reply from the Honorable Minister stating that as per norms, the bed occupancy should be 70%. But I submit that the bed occupancy during 2022-23 is 88.27% and 2023-2024 bed occupancy is 88.61% and 2025 till date it is 92.75%. Now my question is, sir, whether the government is willing to increase the bed capacity by 50% as per the norms which have been built by the hospital. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष, तिरुनेलवेली का हॉस्पिटल का बेड ऑक्यूपेंसी अभी 100 है। ईएसआई का मानदंड का आधार पर हम 3 साल का अंकड़ लेते हैं, 70% बेड ऑक्यूपेंसी होना चाहिए। 23 साल का, पिछले 3 साल का हम लेते हैं, इसी कारण 2021-22 में वो 64% था। सदस्य ने ठीक बोला, 2 साल में वो बढ़ गए हैं, 88% हो गई है, अभी 92% तक पहुंचा है। ये साल का अंकड़ आना चाहिए सर, बाद में हम अंकड़ लेके 50% उसको बढ़ा सकते हैं। सदस्य ने 300 बेड का पूछा है, हम केवल 50% तक बेड बढ़ा सकते हैं सर। तिरुनेलवेली में अभी
100 बेड का हॉस्पिटल है, उसका उसी में सब सुविधा है। एंड तिरुनेलवेली एंड तेंकासी में 11 डिस्पेंसर भी काम कर रहे हैं, वो पूरा वो एरिया का एंड नेबरिंग एरिया को भी कैटरिंग कर रहे हैं सर। Honorable member supplementary. Sir, ESI hospital is used by the local people, BD workers, central government employees of Kodangulam, ISRO and Mahendragiri. The only problem, they installing the MRI and CT is there is lack of space. Now my question is whether the government is open to approving additional space for the installation of MRI and the CT scan machines. Without MRI and the CT scan, the employees are struggling like anything and they are going to outside the private centers for taking MRI and CT. Thank you, sir. सर, तिरुनेलवेली हॉस्पिटल में हर दिन 3 से 4 पेशेंट MRI और CT स्कैन के लिए आते हैं सर। हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड 2 प्राइवेट हॉस्पिटल उधर है, इसके साथ हम जुड़े हैं। They are the referral hospitals in Tenkasi and Tirunelveli. The referral hospitals are catering the MRI and CT scanning. 3-4 पेशेंट के लिए हम ये मशीनरी स्पेशली MRI किधर 300 बेड से ज़्यादा बेडिंग होती सर, उधर हम MRI मशीन डालते हैं। नहीं तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को रेफरल करते हैं। अभी ऐसा प्रस्ताव नहीं है सर। हम फ्यूचर अभी ESI एक्ट को अमेंडमेंट भी किया। फ्यूचरिस्टिक पेशेंट का तो कितना आएंगे ऐसे देखते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिन में, क्योंकि अभी इसका हॉस्पिटल का बेडिंग 92% हो गया। आने वाले दिन में हम इसको बढ़ाने का कोशिश भी जरूर करेंगे सर। श्री के रघुवीर। Thank you, Speaker sir. Sir, I am from Nalgonda constituency. पहले हमारे पास जो MP थे उत्तम कुमार रेड्डी जी, on his request one dispensary is being sanctioned sir, ESI वो budget sanction हुआ था मगर अब तक start नहीं हुआ. But in my constituency there are more than 2,25,000 employees sir. So we have been requesting for ESI hospital from last few years sir. ESI hospital, if it can be sanctioned in my constituency, it will be useful for lots of there are a lot of labor and cement factory workers and all, so it will be useful for them sir. हॉस्पिटल ESI हॉस्पिटल बनाने के लिए 50 किलोमीटर का अंदर में कोई ESI हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए सर। ऐसा मैंडेटरी है, ऐसा नॉर्म्स है। और अभी हम ESI हॉस्पिटल को बढ़ाने को कोशिश कर रहे हैं। ईश्रम योजना में भी हम जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं एंड 50 मीटर का अंदर नहीं है तो हम उसको प्रस्ताव को ले सकते हैं सर। एंड 100 बेड के लिए हम 50 किलोमीटर रखे हैं एंड 30 बेड के लिए हम 25 किलोमीटर्स का रेडियस में हॉस्पिटल नहीं होना ऐसे रखे हैं सर। एंड पूरा देश में 165 ESI हॉस्पिटल है सर। इसी में 59 हम सरकार ESI से चलाते हैं, केंद्र सरकार चलाते हैं एंड 106 स्टेट गवर्नमेंट चलाते हैं सर। टोटल देश में 1590 डिस्पेंसरी से है सर। इसी में तमिलनाडु में 241 में, बाकी स्टेट में है सर। एंड आने वाले दिन में इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हमारा सरकार का लक्ष्य है इनफार्मर का वर्कर्स के लिए भी कौन असंगठित कार्मिक है उसको भी हमारा सोशल सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए एंड सोशल सिक्योरिटी कोड में उसको लाना चाहिए। ऐसे सोच सरकार रखा है सर। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा एक्ट का हम एकत्रित करके 4 कोड का अंदर लाना चाहते हैं। इसी में हर डिस्ट्रिक्ट में ESI हॉस्पिटल बनाना, ESI का फैसिलिटी देना, ऐसे भी सरकार का सोच है सर। श्री N.K. प्रेमचंदन। Sir, thank you very much, sir. Sir, I would like to know from the Honorable Minister through you, sir. Ashramam ESI hospital is one of the best hospital having the rate of
occupancy even up to 100%, 110%. There is a proposal to develop this hospital, and there is also a proposal pending before the ESI Corporation that this has to be developed and to be altered as a medical college hospital. So recently 10 ESI medical colleges has already been sanctioned, including in Varanasi constituency. My specific question is, in the year 2014, there is a policy change on the part of the NDA government, and the ESI Corporation has decided to withdraw from medical education. Now the ESI Corporation has reviewed the policy and decided to restart the medical education, by which 10 medical colleges have already been sanctioned. I would like to know from the Honorable Minister a specific question. Paripalli Government Medical College, which was there, because of the policy of the Government of India led by Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, that ESI Corporation has withdrawn from that hospital. I would like to know from the Honorable Minister whether a new medical college will be allowed, developing ESI hospital as a ESI medical college, because once it was allowed, it was taken back. Whether it will be considered in a positive way, this matter was discussed in the ESI Corporation. Principally, it was consented to by the Minister. I want a specific answer on the floor of the House from the Honorable Minister. Thank you very much, sir. देश में 8 मेडिकल कॉलेज अभी चल रहा है, 10 कॉलेज बनाने का प्रस्ताव है. किधर बनाना, कैसे बनाना एंड कौन सा आधार पर बनाना, उसका चर्चा हो रही सर. ऐसा उसका कॉलेज को बनाना, ऐसा कोई प्रस्ताव अभी नहीं है सर. के सुरेश जी. Thank you, Speaker, sir. Sir, ESIC hospitals in the country for providing better medical treatment of the workers are very poor. Majority of the hospitals, there is no permanent doctors, nurses and other medical staffs. Contractual doctors and nurses and other medical staff working in the ESIC hospitals. There is no proper recruitment whenever the vacancies come. No proper recruitment for the doctors and medical staff. That's why quality of the treatment in the ESIC hospitals come down. I would like to ask Honorable Minister through you, sir, whether the Government of India will take necessary steps to the recruitment of permanent doctors and nurses and other medical staff in ESIC hospital. Thank you, sir. सर, देश में ESI हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का, नर्सेस का कमियां है, वो सही है सर. इसके कारण अभी वैकेंसी भरने के लिए 1210 डॉक्टर्स को भरने के लिए हम इंटरव्यू किया है. इसी में 399 डॉक्टर्स ज्वाइन किया है, बाकी ज्वाइन कर रहे हैं सर. ऐसे ही जनरल डॉक्टर्स को भरने के लिए, उसका अलावा भी जनरल डॉक्टर्स भरने के लिए हम 600 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा है सर. ये एप्लीकेशन जनवरी 31 को लास्ट डेट था एंड मई तक हम उसको भरने का कोशिश करेंगे. वो 1210 प्लस 600 होगा. एंड टीचिंग स्टाफ को भरने के लिए मेडिकल कॉलेज में टीचिंग स्टाफ का भी कमियां है, वो भी डॉक्टर का काम करते हैं. उसको भरने के लिए 287 असिस्टेंट प्रोफेसर को भरने के लिए हम एप्लीकेशन मांगा है. वो भी 31 जनवरी का लास्ट डेट था. मई में उसका इंटरव्यू होगा एंड ज्वाइन भी करेंगे सर. ऐसे हम नर्सेस को भरने के लिए भी एम्स को दिया है सर. 574 नर्सेस को भरने के लिए एम्स के साथ हम कोलैबोरेट किया है. एम्स हमको सेलेक्ट करेंगे एंड ESI को देंगे सर. एग्जाम हो गए हैं एंड 1930 UPSC को हम दिया है. UPSC को भरने के लिए दिया है. एम्स प्लस UPSC दोनों को हम दिया है. पैरामेडिकल को भरने के लिए भी 1206 को भरने के लिए भी हम एम्स को साथ ज्वाइन किए हैं. एम्स सेलेक्ट करेंगे एंड ESI को वो भरेंगे सर. प्रश्नकाल समाप्त. माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं.
माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 माननीय श्री पी चंद्रशेखर जी। Honorable Speaker, ma'am, I lay on the table of the House a copy of the detailed demand for grants of the Ministry of Rural Development for the year 25-26 at serial number 2 of today's list of business on behalf of my colleague, respected Shri Shivraj Singh Chauhan ji. Thank you. आइटम नंबर 3 माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रमांक संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 माननीय डॉक्टर मनसुख मांडवी जी। On behalf of my senior colleague Dr. Bansukbhai Mandavia, I raise to lay the papers mentioned against his name, serial number 4 in today's revised list of business. आइटम नंबर 5 माननीय श्री अर्जुना मेघवाल जी। Honorable Chairperson, Madam, with your kind permission, I rise to lay the paper on the table of the House mentioned against the name of my colleague Shri Rav Inderjit Singh ji pertaining to the Ministry of Statistics and Program Implementation and Ministry of Planning at serial number 5 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 6 माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Speaker, ma'am, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 7 माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, ma'am, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 7 in the today's list of the business of the Lok Sabha. Thank you. आइटम नंबर 8 माननीय श्री जयंत चौधरी जी। Honorable Chairperson, ma'am, with your kind permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 8 at the floor of the House in today's list of business. आइटम नंबर 9 माननीय श्री पंकज चौधरी जी। सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 9 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10 माननीय सुश्री शोभा कारंदे जी। अध्यक्ष जी, मैं आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित क्रम संख्या 10 पर उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 11 माननीय श्री शांतनु ठाकुर जी। Speaker, ma'am, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name, the serial number 11 in this today's revised list of business. आइटम नंबर 12 माननीय श्री सुरेश गोपी जी। Honorable Chairperson, ma'am, with your permission, I wish and rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name at serial number 12 in today's आइटम list of नंबर business. 13 श्रीमती रक्षा खड़गे जी। Speaker, ma'am, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of details demand for grants Hindi and English version of the Ministry of Youth Affairs and Sports for the year 2025-26. आइटम नंबर 14 माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 14 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 15 माननीय श्री पवित्रा मार्गेरिटा जी। Honorable Madam, with your permission, I rise to lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 15 as per today's list of business. आइटम नंबर 16 माननीय डॉक्टर शशि थरूर जी। Thank you, Madam Chairman. I rise today to lay on the table the statements, Hindi and English versions, showing final action taken by the Government of India on the reports of the Standing Committee on External Affairs as listed against my name in serial number 16 in today's revised list of business. Thank you, ma'am. आइटम नंबर 17
माननीय श्री राजीव प्रताप रूडी जी। धन्यवाद। और I wish to present the following reports of Hindi and English versions of Standing Committee on Water Resources. First, reports on demands for grants for the first budget of the Ministry of Jal Shakti, Department of Drinking Water and Sanitation. Second, report on demands of grants for the Ministry of Jal Shakti, Department of Water Resources. Thank you. आइटम नंबर 18 माननीय श्री किरण रिजिजू जी। Madam, with your permission, I rise to move that this House agree with the 6th report of the Business Advisory Committee presented to the House on 7th February 2025. प्रश्न यह है कि यह सभा 7 फरवरी 2025 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत है। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है। शून्यकाल। माननीय सदस्य श्री डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। Notice for a very urgent matter, sir. Very. Ma'am, Supreme Court's parameter for reservation eligibility is 25% BPL population. सर मैम 2023 को नीति आयोग के हिसाब से जो सीमांचल बिहार का एरिया है जहां पे सुरजापुरी की आबादी अच्छी खासी है वो 65% बिलो पॉवर्टी है। सुरजापुरी सबसे डिप्राइव्ड लॉट है मैम, और उसको आरक्षण बंगाल में मिल रहा है, बिहार में नहीं मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री भी लगातार पासबांदा मुस्लिम की चर्चा करते हैं, लेकिन वहां पे ना तो कॉलेज है, ना जॉब्स है, ना इंडस्ट्री है, ना एएमयू के लिए फंड दे रहे हैं। मेरी डिमांड है मैम कि इंक्लूजन ऑफ सुरजापुरी कम्युनिटी इन बिहार स्टेट रिजर्वेशन लिस्ट एनेक्सर 1 में लिया जाए, इंक्लूजन ऑफ सुरजापुरी कम्युनिटी इन द सेंट्रल ओबीसी लिस्ट लिया जाए, और ए डेडिकेटेड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे by the Bihar government and Niti Aayog should be done at the earliest, and implementation of special welfare schemes targeting education, employment, financial support for Surjapuri, just as done for similar placed communities in other states, ma'am. Thank you very much. माननीय डॉक्टर नामदेव किरसान जी। The pension scheme for old artists, which was given by the Cultural Ministry of the central government, now it has been discontinued from the year 2020 and 21. So these old artists, those who are receiving the pension from the central government, now they are depriving of this pension because it is stopped. So they are requesting that this pension has to be started as it was previously. And for the artists who were selected after going through the applications process, as per the format prescribed by the selection committee, we are selected as the beneficiaries of the scheme. When those artists have been selected and some artists have started the pension, so that has been subsequently stopped. So it is my request that the government should start that pension for the artists, old artists, which was given previously. Thank you very much. माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी। माननीय सभापति महोदया, भारतीय खाद्य निगम के श्रमिक पेरोल पर हैं तथा निगम के रेगुलर श्रमिक हैं। इन नो वर्क नो पे श्रमिकों का न ही कोई मासिक गारंटी मजदूरी निर्धारित है और न ही इनके लिए सेवा शर्तों का गठन किया गया है। ये श्रमिक वर्तमान में प्रति माह औसतन 5,000 से 10,000 रुपए तक मजदूरी ही अर्जित कर पाते हैं, जो जीवन यापन के लिए कम है। जब श्रमिक ठेका प्रथा में थे उस समय खाद्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित श्री विवेक मेहरोत्रा कमेटी ने भी इन श्रमिकों को डीपीएस सिस्टम में नियोजित करने हेतु वर्ष 2007 में अनुशंसा किया था, जिसको सरकार ने पत्र दिनांक
1/10/2008 के माध्यम से स्वीकार कर लिया था, लेकिन जब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इन गोदामों से ठेका प्रथा निषेध किया गया तो वर्ष 2011-12 में इन श्रमिकों को डीपीएस सिस्टम में नियोजित नहीं कर नो वर्क नो पे सिस्टम में किया गया। अभी भी कोई मासिक गारंटी मजदूरी नहीं है और ना ही श्रमिकों का कोई सेवा शर्त है। एफसीआई में नो वर्क नो पे सिस्टम समाप्त कर डीपीएस सिस्टम में अपग्रेड करने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने तथा मेडिकल सुविधा प्रदान करने हेतु इन श्रमिकों के लिए मांग करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दिलीप सीकिया जी। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा तिब्बत में यारलंग जंबो के निचले हिस्से में बांध के निर्माण की घोषणा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हाल ही में चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का ऐलान किया है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है और चीन से होते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम से बहकर बांग्लादेश पहुंचता है। चीन में इस नदी की यारलुंग जंबो कहते हैं। तिब्बत में बनने जा रहे इस बांध का असर भारत और बांग्लादेश दोनों पर पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले इस बांध को तिब्बत पठार के पूर्वी छोर पर हिमालय की विशाल घाटी में बनाया जाना है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद नजदीक है और इस इलाका रिंग ऑफ फायर जोन में आता है। ऐसे में इस जगह इतना विशाल निर्माण करना पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। महोदया, इस इलाके में अक्सर भूकंप आते हैं। बांध के बनने से इकोसिस्टम पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा, जिससे कई हादसे हो सकती है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों और बांग्लादेश पहले से ही भयंकर बाढ़ की घटनाओं का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें और अधिक चुनौतियों जैसे भूस्खलन, भूकंप और बाढ़ आदि का सामना करना पड़ेगा, जो कि यहाँ की सभ्यता, पर्यावरण, संस्कृति और नागरिक जीवन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा साबित होगा। इस बांध के निर्माण से दुनिया का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा और वर्ष 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बांध पर बनने वाले हाइड्रो पावर स्टेशन से हर साल 300 मिलियन kWh से अधिक बिजली पैदा की जा सकती है। महोदया, चीन लगभग $137 बिलियन की लागत से इस बांध का निर्माण करने जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। उसने जिस बांध को बनाने का प्लान तैयार किया है, उसमें काफी ज्यादा मात्रा में पानी को स्टोर किया जा सकेगा। जाहिर है कि बांध बनने के बाद नदी के बहाव पर चीन का कंट्रोल हो जाएगा और भविष्य में पूर्वोत्तर भारत में पानी की कमी या बाढ़ का संकट हमेशा के लिए बना रहेगा। साथ ही अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बेहद नजदीक तक चीन का प्रभाव भी बढ़ सकता है। अतः आप महोदया से माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर इस बांध के निर्माण को रोकने के विषय में जरूरी कदम उठाने का कस करे, ताकि असम समेत पूरे पूर्वोत्तर भारत को भविष्य के संकट से बचाया जा सके। धन्यवाद महोदया जी। माननीय सदस्य श्री सप्तगिरी शंकर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। I rise today to bring in urgent attention to the House a matter of immense significance for the people of South Odisha, the realignment of the sanctioned Gunpur-Tirur rail line project to pass through Padampur, Gudari and Bisamkatak. Ma'am, we welcome the much needed railway project in its current alignment, but it fails to serve any meaningful purpose. Instead, it bypasses densely populated, economically active and historically significant areas, leaving out the very people who would benefit from this project. Sir, this demand has been approved by the General Manager, East Coast Railway. The final location survey has also been completed, confirming that a minor 17-kilometer deviation, the railway line can pass through Padampur, Gudari, Ramnaguda, Bisamkatak and other key blocks, directly benefiting over 6 lakh people in Raigad and Gajbet districts. Ma'am, the current line passes through sparsely populated barren areas. In contrast, the realignment via Padampur, Bisamkatak would serve as a catalyst for economic growth, improving access to trade, education and healthcare. This region is agriculture intensive, commercially significant and historically important.
yet its exclusion from the railway project is unjustifiable. The sanctioned alignment of Gunpur-Tirur rail line project, which includes station Gunpur, Penkam, Ramnaguda, Bankli, Durgi and Tiruvali, passes through thinly inhabited and abandoned areas with minor realignment. It can pass to stations like Gunpur, Chalakamba, Padampur, Bisamkada, Gumda, Penkam, Ramnaguda, Bankli, Durgi and Tiruvali, which follows a geographically logical and development focused route directly benefiting over 6 lakh people in Raigada and Gajpati district. I urge the Honorable Minister of Railways to issue a formal directive to re-examine the alignment, considering the GM from East Coast Railway that approved the final location survey. This small realignment will bring enormous socio-economic benefit to the region and prevent yet another case of public infrastructure failing to serve the public needs. Ma'am, I urge the government to act immediately and not let another crucial infrastructure project bypass the rightful aspiration of the people. Let development be inclusive, people-centric and equitable, ma'am. Thank you so much. माननीय सदस्य श्री छत्रपाल सिंह जी। कैसा चल रहा? ठीक है। माइक चालू नहीं है क्या? धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं सदन के माध्यम से आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरी संसदीय लोकसभा क्षेत्र बरेली में ट्रेन नंबर 15056/15056 रामनगर जंक्शन उत्तराखंड से आगरा फोर्ट जंक्शन उत्तर प्रदेश तक सप्ताह में केवल 3 दिन रविवार, मंगलवार, शुक्रवार को ही जाती है। इस ट्रेन का उपयोग उत्तराखंड तथा तराई तथा बरेली, बदायूं, कासगंज, हाथरस के यात्री भरपूर मात्रा में यात्रा करते हैं। इस ट्रेन के प्रतिदिन न होने के कारण इन यात्रियों को अन्य दिनों में अपनी यात्रा को अन्य संसाधनों से पूर्ण करना पड़ता है, जिससे इस यात्रा को पूर्ण करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जनहित की इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए जनमानस को लाभ पहुंचाने के लिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि रेल संख्या 15056 और 15055 इज्जतनगर मंडल उत्तर पूर्वी रेलवे बरेली को प्रतिदिन कर दिया जाए, जिससे उत्तराखंड और संपूर्ण तराई, बदायूं, बरेली, कासगंज के यात्रियों को इसका लाभ उठा सके। मैं इसके लिए बरेली की जनता सदैव मंत्री जी की आभारी रहेगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुश्री प्रणति जी। माननीय सदस्य श्री जितेंद्र सिंह जी। जी माननीय सदस्य। मैडम, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिसंबर 13 को एक जीआर निकाला जहां पे उन्होंने कहा कि जितने भी सार्वजनिक काम हैं, रस्तों के हो, चाहे ड्रेनेज के हो, कहीं नालों के हो, वो तुरंत स्थगित होने चाहिए, रद्द होने चाहिए, रुकने चाहिए, क्योंकि पेंडिंग कामें पहले की बहुत थी, लेकिन इसके वजह से जो गांव के रास्ते, पूरे महाराष्ट्र का इशू है और सारे एमपीज मुझसे सहमत। माननीय सदस्य, विषय क्या है आपका? सार्वजनिक कामों का जो जीआर है वो नो मनरेगा आपने जो यहाँ विषय दिया है मनरेगा से संबंधित है। नरेगा का ही है मैम, नरेगा का ही है। जो नरेगा के काम है, सार्वजनिक काम है नरेगा के, वो रुकवाए गए हैं महाराष्ट्र शासन की तरफ से, और जो जितने भी सार्वजनिक काम है रस्तों के, वो बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से दिसंबर से महाराष्ट्र में एक भी रास्ते का काम नहीं हुआ है। जो खेत को खेत से जुड़ने वाले रास्ते हैं, गांव को गांव से जुड़ने वाले रास्ते हैं, रिवर के ऊपर के रास्ते हैं, नाले के ऊपर के रास्ते हैं, सब महाराष्ट्र में बंद है। दिसंबर 13 ने
क्योंकि गवर्नमेंट ने ये जीआर निकाला है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 100 दिन के जो नरेगा के जो काम है उसका जो पेमेंट है केंद्र शासन से वो भी 2 महीनों से बंद है। 100 दिन का पेमेंट केंद्र शासन का जो है वो बंद है। 100 दिन के ऊपर जब 20 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, उसका भी जो स्टेट गवर्नमेंट का पेमेंट है वो पिछले 2-3 महीनों से नहीं आया है। मेरे मन में सवाल ये आता है, क्या ये पैसे कहीं और डाइवर्ट किए गए हैं कोई और योजना के लिए, क्योंकि इलेक्शन जीतना चाहते थे? ये सवाल है, क्योंकि अगर गांव में रास्ते का काम नहीं हो रहा और उसके लिए जीआर आया है कि सारे काम बंद होने चाहिए, तो ये चिंताजनक चीज है। और मैं आपके माध्यम में से सरकार को कहना चाहती हूँ कि ये जो जीआर है उसके ऊपर आप तुरंत स्टे लाए, ताकि महाराष्ट्र में जितने भी पानन रास्ते, जिसको हम पानन रास्ते कहते हैं, सार्वजनिक कामें शुरू हो, तुरंत ये जीआर को स्थगिति मिलनी चाहिए। ऐसे में आपके द्वारा निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री त्रिवेंद्र सिंह जी। त्रिवेंद्र सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्षा जी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तराखंड राज्य में बार बार आने वाली बाढ़ की गंभीर और आवर्ती समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सदन से तत्काल ध्यान की मांग करती हूं। हाल ही में जुलाई और अगस्त 2024 में बाढ़ ने अत्यधिक विनाशकारी प्रभाव डाला है। 1 अगस्त 2024 को भारी वर्षा के कारण घरों के ढहने और बाढ़ से 6 लोगों की मृत्यु हो गई तथा अनेक लोग घायल हो गए। हरिद्वार, टिहरी, देहरादून, चमोली जिलों में बाढ़ का गंभीर प्रभाव देखा गया। हरिद्वार में सड़कें जलमग्न हो गई, सूखी नदी उफान पर आ गई, जिससे अनेक वाहन बह गए और भूपतवाला, हरिद्वार, कनखल, ज्वालापुर जैसे क्षेत्रों में कॉलोनियों और बाजारों में पानी भर गया। खराब मौसम के कारण केदारनाथ यात्रा को भी अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। गंगा और सोलानी नदियों से आई बाढ़ ने विशेष रूप से किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया। इन नदियों में अचानक छोड़े गए पानी के कारण हजारों हेक्टेयर फसलें नष्ट हो गई, जिससे किसानों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई। रिपोर्टों के मुताबिक 53,000 हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें बर्बाद हुई, जिससे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। यह बाढ़ कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि हर साल दोहराई जाने वाली त्रासदी बन गई है। कृषि और स्थानीय व्यवसायों पर इसका आर्थिक प्रभाव विनाशकारी है। मेरी सरकार से मांग है कि गंगा नदी के किनारे और सोलानी नदियों के किनारे बैरिकेटिंग और तटबंध निर्माण कराए जाएं। ये बैरिकेड और दीवारें बहुत मजबूत होनी चाहिए, जिससे बाढ़ के पानी को नियंत्रित किया जा सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि गंगा नदी में और सोलानी नदियों में बाढ़ के कारण तमाम मगरमच्छ और घड़ियाल एक गांव की बस्तियों में घुस जाते हैं और लोगों के जीवन को एक दूसरा खतरा उत्पन्न हो जाता है। हरिद्वार, खानपुर, लक्सर और रुड़की क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर उक्त संरचनाओं का निर्माण बहुत जरूरी है, उसको किया जाए। बांधों से पानी छोड़ने की जो वैज्ञानिक और व्यवस्थित प्रक्रिया है उसी को अपनाया जाए। एक वैज्ञानिक और समयबद्ध प्रक्रिया अपनाकर धीरे धीरे पानी छोड़ा जाए, ताकि बाढ़ की भयावहता को कम किया जा सके। बाढ़ से प्रभावित किसानों को समय पर और उचित मुआवजा दिया जाए। फसल नुकसान का आकलन करके उचित मुआवजा तय किया जाए। मुआवजा राशि के लिए भी एक अवधि जो 3 महीने की होनी चाहिए, उसको समयावधि के अंतर्गत उसको किया जा सके, ताकि किसान की आर्थिक स्थिति संभल सके। नदी के मार्ग की सफाई और विस्तार किया जाए। गंगा और सोलानी नदियों के जलमार्ग की सफाई और गहराई बढ़ाई जाए, ताकि अधिक पानी को धारण किया जा सके और बाढ़ की संभावना को कम किया जा सके। सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र से नदी में गिरने वाले रासायनिक कचरे पर रोक लगाई जाए, ताकि भूमि की उर्वरता ये बची रहे। समुदाय आधारित आपदा तैयारी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। स्थानीय प्रशासन, पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों को शामिल कर ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं। प्रभावित इलाकों में बाढ़ रहित राहत शिविर स्थापित किए जाएं और प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड के किसानों और आम जनता के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने और राज्य के लिए अधिक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं और जो गंगा के तट हैं उन तटबंधों को मजबूत किया जाए,
ताकि किसानों को जो विशेष रूप से गन्ना किसानों को भारी नुकसान इस सीजन में होता है उससे बचा जा सके। माननीय सदस्य श्री विप्लव कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान असम अगरतला NH8 खस्ता हाल स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तो वो त्रिपुरा के लाइफलाइन है, ग्लोबल ईस्ट के लिए भारत का प्रवेश द्वार बन जाती है। वो सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के सरकार बनाने की दिशा में भी बड़ा कदम है। 371 किलोमीटर लंबा NH8 त्रिपुरा राज्य के देश के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ता है। NHIDCL द्वारा निर्मित वो क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए की महत्वपूर्ण स्थानों का होकर गुजरता है। चौड़ाईबारी और सनी चौड़ा के बीच 11 किलोमीटर का हिस्सा बड़े बड़े गड्ढे और कीचड़ से भरा हुआ है, जिससे अक्सर दुर्घटना होती है। उचित जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण बारिश का पानी असम आसपास के पहाड़ियों से मिट्टी सड़क पर भर जाती है, जिससे वो कीचड़ में तब्दील हो जाती है। स्थानीय लोगों को आना जाना करना इसमें मुश्किल आ रहा है। NHIDCL उदासीनता कारण से इस रोड का जो मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं, जो नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो रोड के क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि NHIDCL जो भी कॉन्ट्रैक्ट वहां दिया जाता है वो लोएस्ट बिड के तहत दिया जाता है। NHI बहुत जगह में मैंने देखा मेरिट के बेस में भी काम दिया जाता है। मेरे आपके माध्यम से आग्रह है कि उस रोड को चाहे तो मेरिट के आधार पर दे के अच्छे से काम करा, क्योंकि 7 महीने वहां बारिश होता रहता है। तो इस तरीके से लोअर क्वालिटी का काम जब दिया जाता है लोएस्ट बिड में, तो 6 महीने के अंदर रोड खराब हो जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार और राजमार्ग मंत्रालय में आग्रह करना चाहता हूं, इसको विशेष दृष्टि से देखे, क्योंकि वो त्रिपुरा का लाइफलाइन है, और तुरंत इसको मरम्मत करे। और इसके लिए NHIDCL के किसी एक कमेटी बना के इसको धन्यवाद देखभाल कर ऐसा व्यवस्था करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर लता वानखेड़ी जी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदया। मैं आज आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कुछ कहना चाहती हूं कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी, आपके मंत्रालय द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष रूप से नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की मैं सराहना करती हूं। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुई प्रगति ने न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया, बल्कि आम नागरिकों को, खासकर ग्रामीण परिवारों और किसानों को किफायती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद की है। मैं मध्य प्रदेश के सांसद लोकसभा से आती हूं, जहां 70% क्षेत्र आज भी ग्रामीण अंचलों में रहता है। मेरे संसदीय क्षेत्र सागर में भी ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अब तक कितने सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? क्या हर गांव को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए कोई विशेष योजना बनाई गई है? साथ ही कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के लिए किसानों को सोलर पैनल पर विशेष अनुदान देने की दिशा में आपकी क्या आगामी कार्य योजना है, ताकि हमारे किसान भाई सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा का लाभ उठा सके? इसके अतिरिक्त स्मार्ट विलेज विकसित करने की दिशा में आपके मंत्रालय द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी आगामी नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे गांव में ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित हो और महिलाएं व किसान सशक्त हो? माननीय सभापति महोदया, मैं चाहती हूं कि मेरी लोकसभा में 650 ग्राम पंचायतों में 3300 गांव आते हैं, जो स्मार्ट विलेज बने और सभी में सोलर पैनल के माध्यम से ऊर्जा मिले। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री योगेंद्र चांदोलिया जी। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके समक्ष इस सदन में दिल्ली के भूमिहीन लोगों को मालिकाना अधिकार मिले, वह आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं दिल्ली के भूमिहीन लोगों और किसानों को प्रभावित करने वाले एक लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे को इस सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं।
वर्ष 1975-76 में तत्कालीन भारत सरकार के कार्यकाल में उस समय देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। उनके कार्यकाल के दौरान दिल्ली राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि और 120 गज के भूखंड आवंटित किए गए थे। लेकिन अफसोस ये है कि आज तक उन्हें मालिकाना अधिकार नहीं दिया गया। 49 साल के बाद भी वह लोग मालिकाना अधिकार के लिए दर दर घूम रहे हैं। मालिकाना अधिकार से इनकार के परिणाम स्वरूप इन किसानों और भूमिहीन लोगों के लिए भारी कठिनाई और अनिश्चितता पैदा हो गई है। दिल्ली के भूमिहीन किसानों को मालिकाना अधिकार के साथ मिलने वाले ऋण सुविधाओं, बीमा और अन्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा वे लगातार बेदखली के खतरे में रहते हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिल्ली के किसानों को किसान का दर्जा नहीं मिल पा रहा। अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों को 1 एकड़ आवंटित कृषि भूमि 1975 में आवंटित की गई थी, परंतु आज तक मालिकाना अधिकार अनुसूचित जाति के किसानों को पिछले 50 वर्षों में नहीं दिया गया है। ये न्याय, समानता और मानव अधिकार का मामला है। माननीय सभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से इन भूमिहीन लोगों और किसानों को मालिकाना हक देने के लिए एक समय सीमा के भीतर तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मेरा ये प्रश्न 5 दिसंबर को मैंने लगाया था। उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो मुझे उत्तर दिया था, उस समय की तत्कालीन सरकार जो जा रही है, उन्होंने इस सदन को और माननीय मंत्री महोदय को जो आंकड़े दिए थे, वो आंकड़े झूठे आंकड़े उन्होंने दिए थे। उन आंकड़ों को आपके सामने में रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि लगभग 3204 एकड़ जमीन के वो लोग हैं। मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। स्वतंत्रता सेनानियों को वंदे भारत ट्रेन में प्रथम श्रेणी पास के माध्यम से यात्रा की सुविधा नहीं मिल रही है, जबकि अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ये सुविधा उपलब्ध है। ये तथ्य काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, उन्हें इस आधुनिक और सम्मानजनक ट्रेन में यात्रा करने से वंचित किया जा रहा है। आज के समय में वैसे भी स्वतंत्रता सेनानी बहुत कम संख्या में बचे हैं और उनका यात्रा भी गिनी चुनी होती है। वंदे भारत और वंदे मातरम जैसे शब्द स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली संघर्ष और नारे से जुड़े हुए हैं। संभवतः इस विषय की जानकारी आपके संज्ञान में ना हो, इसलिए मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्वतंत्रता सेनानियों को वंदे भारत ट्रेन में प्रथम श्रेणी पास की सुविधा देने की कृपा करें। इससे न केवल उनका सम्मान होगा, बल्कि राष्ट्र की ओर से उन्हें एक छोटा सा कृतज्ञता भाव भी मिलेगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरविंद गणपत सावंत जी। चेयरमैन मैडम, आज मैं बहुत पहले शुरू में खेद प्रकट करता हूं कि पिछले 10 सालों से एक मांग करते रहा हूं मैं। आज सुबह छत्रपति शिवाजी महाराज के सारे किलों के संबंध में विरासत की बात की। उन किलों के लिए स्वदेश दर्शन पर्यटन में सम्मिलित किया जाए किलों को, यह भी मांग की। हमारे मुंबई में पूर्व विक्टोरिया टर्मिनस नाम का स्टेशन जो था, बोरी बंदर कहते थे कभी कभी, उसका नामकरण छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस किया गया। अब उस वक्त से लेकर मैं आज तक एक मांग करता रहा हूं कि उस मुख्यालय के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठाया जाए। आप जानती हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत
इस देश को अगर स्वराज्य का मंत्र किसी ने दिया, जिजाऊ माता ने कहा पुत्र को कि देख सुबह इस राष्ट्र में क्या हो रहा है, सब मुगल आक्रमण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में स्वराज्य का निर्माण होना चाहिए। इस देश के इतिहास में स्वराज्य नाम का शब्द, हिंदवी राज्य नाम का शब्द अगर किसी के मुख से आया तो वो है छत्रपति शिवाजी महाराज, और अंत तक उन्होंने अपना स्वराज्य निर्माण किया गया। उस स्वराज्य में जात पात धर्म पंथ नहीं थे, ऐसे किले बनाए जो पहाड़ों पे भी है और समुद्र के पानी में भी किले बने। सबसे बड़ी बात है, इतने ऊंचाई पर पीने का पानी आज भी उपलब्ध है और गहरे समुद्र में बनाए हुए किले में भी पीने का पानी आज उपलब्ध है। विजनरी राजा जिसे कहते हैं वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज थे, और इस छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़, राजगढ़, लोहगढ़, सिंहगढ़ या सिंधुदुर्ग का किला, यहाँ भी इनके किले बने हुए हैं। मैं आप मैडम इतने भाषण करते रहे लोग, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए रुका हुए आप, कमाल होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के सामने आप पुतला कह रहे हैं, प्रतिमा पुतला नहीं, आप हिंदी में प्रतिमा कहती हो, धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा वहां छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के सामने वहां उसका निर्माण करने के बारे में मैं मांग, एक मिनट, इस मांग को लेकर केंद्र की सरकार के ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं ऐसे हमारी कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई हमारी इस तरह से हमारे पास कोई धारणा है। इसके लिए मैंने उनको कहा कि हाल ही में आपने वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम बनाया, वल्लभ भाई पटेल के नाम पर वहां केवड़िया स्टेशन बनाया, आदरणीय वल्लभ भाई पटेल स्वातंत्र में उनका पुतला भी बनाया, मैं उसकी सराहना करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला प्रतिमा आप नहीं बनाते हो, मैं तुम्हारा इस माध्यम से मांग करता हूं कि केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री से मांग करो, 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, उसके पूर्व छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा का निर्माण किया जाए, ऐसी मांग मैं आपके माध्यम से सरकार की तरफ से। माननीय सदस्य श्री वीके श्री कंदन जी, जी Prospective chairperson, due to non-release of the central share pertaining to schemes such as Indira Gandhi National Old Pension, Indira Gandhi National Widow Pension and Indira Gandhi National Disability Pension to the state of Kerala. Many thousands of people in the state are not getting central share of these schemes for many months, running into over 15 months. Therefore, it is urged that the government may release central share of these schemes to the beneficiaries urgently. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्रीमती भारती पारधी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मेरे क्षेत्र मध्य प्रदेश के बालाघाट सिवनी लोकसभा क्षेत्र में प्रमुख रूप से धार्मिक स्थल है बाबा कोटेश्वर धाम, जो भारत सरकार की अडॉप्ट एंड हेरिटेज योजना के तहत शामिल करने का प्रस्ताव मैं रखना चाहती हूँ। यह ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण आदि शिव जी का मंदिर 11वीं शताब्दी से संबंधित है और इसमें 108 उपलिंगों में से एक माना जाता है इसे। यह मंदिर राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक है, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। अडॉप्ट हेरिटेज योजना के तहत इस स्थल को यदि अधिक संरक्षित किया जाता है तो जिसमें धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध की जा सकेगी। इस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि बनाने के लिए इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव मैं रखती हूँ। जय कोटेश्वर बाबा। माननीय सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद जी। है नहीं। माननीय सदस्य श्रीमती लवली आनंद जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर के एक महत्वपूर्ण विषय को माननीय उद्योग मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहती हूँ।
शिवहर बिहार का एक छोटा जिला होने के कारण 3 ओर से सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी से जुड़ा हुआ है और एक और नेपाल से भी जुड़ा हुआ है। शिवहर संसदीय क्षेत्र में गरीबी और पिछड़ेपन के कारण यहाँ से मजदूरों का पलायन बहुत अधिक होता है और इसका मुख्य कारण जिले में किसी उद्योग का न होना वो है। मजदूरों के पास काम नहीं है, उन्हें रोजी रोटी की समस्या रहती है। शिवहर में कागज फैक्ट्री की संभावना है और यदि वहाँ पर कागज फैक्ट्री की स्थापना हो जाती है तो मजदूरों का पलायन तो रुकेगा ही, साथ ही स्थानीय लोगों को कुछ व्यवसाय के अवसर भी मिलेंगे और राज्य को अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति भी होगी। अतः मंत्री महोदय से आग्रह है आपके माध्यम से कि इस विषय को संज्ञान में लेकर शिवहर में जल्द से जल्द कागज फैक्ट्री स्थापित करने की कृपा की जाए। आपने हमें 0 आवर में बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण और मेरे क्षेत्र के बहुत गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। पाली लोकसभा क्षेत्र के पाली जिले में बांदी नदी और नेहड़ा बांध जो लगातार प्रदूषित होते जा रहे हैं, क्योंकि वहां कपड़ा फैक्ट्रियों का पानी जो है वो उसमें जाने से स्थिति बन रही है और नदी में पानी जाने की वजह से जो कुएं हैं आसपास उनमें भी केमिकल का और जहरीला पानी निकलता है और पानी जो नेहड़ा बांध में जाता है उसकी वजह से, इरिगेशन की वजह से वहां पर जमीन भी बंजर हो चुकी है, खराब हो चुकी है। तो स्थिति बहुत खराब है और जहां पर पशु पक्षी वगैरह जो पानी पीते हैं उनमें भी जो है मृत्यु दर उनकी ज्यादा है और उसके कारण उनमें बांझपन और उनकी उत्पादन क्षमता और प्रतिरोधक क्षमता पे उस पर बहुत जबरदस्त प्रभाव आया है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि वहां पर पास में ही ये 3 जो जगह हैं जहां कपड़ा उद्योग ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा है, पाली, जोधपुर और बालोतरा, इन तीनों समस्याओं का हल के लिए उपाय है। क्योंकि वहां पर हाल ही में बालोतरा में रिफाइनरी आई हुई है, वो रिफाइनरी पानी जो है शुद्ध पानी राजस्थान कैनाल से लेती है, बजाय राजस्थान कैनाल से उसको पानी नहीं दिया जाए रिफाइनरी को। रिफाइनरी को पानी, ये प्रदूषित पानी जो है, जो पाली का, जोधपुर का और बालोतरा का, इस पानी को टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद में उस रिफाइनरी को दिया जाए जो आरओ लगा करके उस पानी को उपयोग में कर सके और ये प्रदूषण जो कि नदी में है, जो कि कुओं में हो रहा है और नुकसान हो रहा है प्रदूषण की वजह से, ये प्रदूषण खत्म हो सके। इसीलिए मेरे पर्यावरण मंत्री जी से और भारत सरकार से निवेदन है कि वो अपने हिस्से का अगर कुछ पैसा, कुछ मदद अगर इसमें दी जाए तो रिफाइनरी और इंडस्ट्री, भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलके ये इस समस्याओं का हल कर सकते हैं और बहुत बड़ी समस्याओं का हल हो पाएगा अगर ये सब मिलकर के हम करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माननीय सदस्य डॉक्टर निशिकांत दुबे जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं आपके माध्यम से इस देश का ध्यान बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, माननीय राष्ट्रपति ट्रंप बैठे और उन्होंने यूएस एड जो है वो कंप्लीट बंद कर दिया। इस आधार पर बंद कर दिया कि यूएस एड वर्षों से केवल भिन्न भिन्न सरकारों को गिराने के लिए ही अपना पैसा खर्चा करती है और उसने जो आंकड़े दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के लिए। मेरा कुछ सवाल है इस देश से और विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उससे। पहला सवाल आपके माध्यम से सरकार से, पहला यह है कि यूएस एड ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस को 5,000 करोड़ रुपया भारत को टुकड़े करने के लिए दिया या नहीं दिया? यूएसएड और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को पैसा दिया कि नहीं दिया? तीसरा, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा साहब, उनको यूएसएड ने पैसा दिया या नहीं दिया? बांग्लादेश का जो पोषाहार है जिसको कि यूनुस जो सीईओ है
वो जिसने कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को बर्बाद किया, उसके साथ गांधी परिवार के क्या संबंध हैं? चौथा सवाल यह है कि राजीव गांधी फाउंडेशन में जो विजय महाजन है, प्रधान जो उनकी संस्था है, उसको यूएसएड पैसा दे रही है कि नहीं दे रही है? आपने राजीव गांधी फाउंडेशन में विजय महाजन को देश को टुकड़े करने के लिए रखा है या नहीं रखा है? रूरल डेवलपमेंट ट्रस्ट जो कि जातिगत जनगणना की बात करता है, यूएसएड उसको पैसा देता है कि नहीं देता है? इसके बाद तालिबान को यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? आपकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? नेपाल में मनमोहन सिंह जी के रहते हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया, जो एथिस्ट मूवमेंट है उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? सामंता पावर से आपकी मुलाकात हुई या नहीं हुई? हेल्पिंग हैंड, इन फलाह इंसानियत और अहल खिदमत जिसने कि इस भारत में आतंकवादी और नक्सलवादी गतिविधि बढ़ाई, उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के साथ उसके संबंध में वक्फ के एक्ट को जो जकात फाउंडेशन विरोध कर रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, वो उसको यूएसएड ने पैसा दिया कि नहीं दिया? मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस देश में कई संस्थाएं ह्यूमन राइट्स लॉ के नाम पर, शेरपा के नाम पर, कोऑर्डिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर, राइट ऑफ फूड कैंपेन के नाम पर, सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च के नाम पर, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम पर, नमाती के नाम पर और इकोनॉमिस्ट के नाते अमर सिंह के नाम पर इन सारे लोगों को यूएसएड पैसा देती है। और चाहे अग्निवीर हो, चाहे जातिगत जनगणना हो, इन सारे चीजों में कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच हो और उन सबों को सलाखों के पीछे रखे। आपने मुझे मौका दिया। जय हिंद, जय भारत। माननीय सदस्य श्री गुरुमूर्ति, माननीय सदस्य श्री जी, थैंक यू मैडम। शून्यकाल में कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। शून्यकाल प्लीज। थैंक यू। माननीय श्री जी गुरुमूर्ति जी, थैंक यू मैडम। I would like to draw the kind attention of the House to the dismal conditions of बहुत से सदस्य शून्यकाल पे बोलना चाहते हैं। प्लीज बैठिए, प्लीज। आशा वर्कर्स, yes sir, and resource person working under SERP and MEFA schemes, madam. These workers who play a crucial role in the welfare of our society are currently being paid wages far below the minimum standards, madam. These conditions leading to akin to bonded labor, madam. Despite their significant contribution, the minimum wages provided to the insufficient to meet their basic needs, madam. The compliance with the Minimum Wages Act in this sector remains poor, with widespread of reports of violations, madam. I urge the government प्लीज अपनी एक मिनट में बात खत्म करिए, प्लीज, to ensure that these workers are provided fair wages in accordance with the Minimum Wages Act, madam. Further, I request the comprehensive social security scheme be extended to cover them, including provident funds, health benefits, and to recognize their services to माननीय सदस्य श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी, their compensation and social security or their rights, not a privilege, madam. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री E.T. मोहम्मद बशीर जी, बोलिए प्लीज बोलिए। बशीर जी, सर चालू भाई। Asha workers are doing marvelous बहुत service महत्वपूर्ण विषय for the पर बोल रहे हैं healthcare and welfare of the children and progressive women. In fact, they are doing 24/7 service. They are facing a lot of hardship and grievances. Asha workers are not salaried. They are not getting any amenities like that. They are having a lot of difficulties. I urge upon the government to take it very seriously and take appropriate action to solve the grievances.
माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी, शून्यकाल में माननीय सदस्य कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है नहीं, नहीं होता है नियम, नहीं कोई नियम में नहीं है, सॉरी, प्लीज आप बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी, नहीं इनको बुलाइए, मैडम लास्ट का ना जो आएगा ये कृष्ण प्रसाद टेनी। माननीय सदस्य श्री कृष्ण प्रसाद टेनेटी जी। Madam, thank you for giving me this opportunity to speak on the important matter of establishing Jawahar Navodaya Vidyalaya and 6 new Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas in Bapatla. In my response to my unstarred question number 1027 in this August House, the Honorable Education Minister mentioned that the newly carved out Bapatla district does not have a JNV. As such, the students are permitted to apply for admission in the JNV in the old undivided district. While I appreciate the measure, madam, it is imperative that a new JNV is established at the earliest in the newly formed district where my parliament constituency also exists. 25 lakh students have applied for class 6, but only 49,000 students were given admission in this year in JNV. It shows the importance of having more JNVs formed and established in the country, particularly in the newly formed and backward district like my district, that is Bapatla district. Similarly, the Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, I requested for 6 Kasturba Gandhi Vidyalayas. I am requesting, madam, through your honorable self, to honorable minister, to sanction 6 Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya schools in 6 assembly segments of my constituency. Furthermore, since honorable finance minister has placed special emphasis on Ekalavya model residential schools in her speech, I would request the expansion of the scheme in my parliamentary constituency of Bapatla as well. Finally, madam, through your good self, I am requesting the honorable minister through you to expedite the process of setting up new Jawahar Navodaya Vidyalaya and 6 new Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas and Ekalavya model residential schools in my constituency, Bapatla parliamentary constituency, which is also a newly formed and most backward district in the state of Andhra Pradesh. Thank you very much, madam. Thank you so much. माननीय सदस्य श्री जगदम्बा पाल जी। सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूँ। माननीय सदस्य बैठ जाइए, प्लीज बैठ देश के उन लाखों आंगनबाड़ी की जो महिलाएं आज केंद्र की, प्रदेश की कोई सरकार हो, उन सारी योजनाओं को लागू करने का काम 6 महीने से 6 वर्ष के बच्चियों को, चाहे उन्हें नगर हो या पुष्टाहार योजना हो, मैं 2 फैसलों की तरफ कहना चाहता हूं कि आज एक गुजरात हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस श्री निखिल एस करेल, जज गुजरात हाई कोर्ट, स्पेशल सिविल एप्लीकेशन 8164, इसमें उन्होंने जजमेंट किया है कि देश की आंगनबाड़ी महिलाओं को राइट टू एजुकेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ फूड एक्ट इन कंप्लायंस ऑफ द आर्टिकल 47 इनको एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए, न्यूनतम वेतन देना चाहिए। आज वो आंगनबाड़ी की महिलाएं जहां उन बच्चों के लिए पुष्टाहार का कार्यक्रम करती हैं, देश के 2 फैसले ऐसे हुए हैं कि उन फैसलों से आज भी उनको केवल 2500 और 4500 मिल रहा है। धन्यवाद माननीय सदस्य। केंद्र की योजनाओं को लागू कर रहे हैं, चाहे सेंसस हो, सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।